Good morning, masters. A very warm welcome. And we have again restarted our week. So we'll start our week with early in the morning with the Parabrahma Tattva, with the Parabrahma Swarupa. So, and in the last session, last week, we have recited um Bhagavad Gita uh, chapter, one second. We have recited Bhagavad Gita chapter 8, Akshara Brahma Yoga, and we have recited till verse 18, verse 13. So today we'll start with verse 13 and till 20. So before starting into the Bhagavad Gita, we'll have a small contemplation about ourselves. So, in Taittiriya Upanishad, in our we have 108 Upanishads. In that Taittiriya Upanishad, it is born from Yajurveda. From Yajurveda, we have got Krishna Yajurveda. From Krishna Yajurveda, we have got Taittiriya Upanishad. In that Taittiriya Upanishad, we have Sikshavali, Brahmanandavali, Bhruguvali. So these are three parts in Taittiriya Upanishad. In that Taittiriya Upanishad, Bhruguvali, where he is भृगु महर्षि, जैसे हम सबको पता है, सप्तर्षियों में भृगु महर्षि एक थे। तो भृगु महर्षि अपने पिता वरुणा से भेंट कर रहे थे कि क्या मुझे परब्रह्म को दिखाओ, परब्रह्म का तत्व मुझे जानना है करके एक बार भृगु महर्षि वरुणा से भेंट करते हैं। तो इसमें हमको क्या समझना है? तो इट हैज अ वेरी वास्ट नॉलेज। हमारा वेद अनुसार उनसे ही हमारा जो भी आज का स्टडीज है उनसे ही बॉर्न हुआ है। और यह आता है कि हम वी हैव थ्री बॉडीज, मतलब एक पहला वाला फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, ये पंच तत्व से बना है। वी हैव फिजिकल टच ऑन इट, वी हैव पंचभूत ऑन इट, फाइव सेंसेस ऑन इट, वी हैव कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ऑन इट, then sorry, कर्मेंद्रिय on it, not then comes to the next body, which is uh, subtle, our subtle body, that comes that forms with our gnana, with our prana. So that is our second body, subtle body. And then comes our casual body. That casual body is formed with thoughts, contemplation of thoughts, contemplation and reaching to Parabrahma. So, our journey always travels back and forth in these three bodies in every day of our life, every day and every night, I would say. So, that is gross body, physical body. Second is our second is our subtle body, and third is our casual body. In these three bodies, there are five sheets, panchakoshas. Those panchakoshas are Annamaya kosha, which is formed for the food that we intake; Pranamaya kosha, that is formed from our prana. Then comes with Manomaya kosha, which is formed from our mind, our manas. Then comes the fourth one is Vijnanamaya kosha. It comes from the knowledge. And finally, Anandamaya kosha. That comes from that comes from Parabrahma Tattva. That means Brahma, when we seek the Parabrahma without any contemplations of what is Brahma, why I have to, there are no questions in that. आनंदमय कोश इस सिर्फ और सिर्फ आनंदमय के लिए है, सिर्फ हमारा ब्रह्मानंदमय के लिए है। तो आनंदमय कोश is very near to our Atma. आत्म स्थिति इज कनेक्टेड विद आनंदमय कोशा। तो पहले विभाग में जब हम पढ़ रहे थे, श्री कृष्ण भगवान ने हमको कर्म योग में क्या बताया कि
कर्मयोग में हमको क्या बताया कि अ, श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग में क्या बताया कि थॉट्स रखो, काम करो। फिर थॉट से ऊपर नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर विजडम है, और विजडम के ऊपर मैं हूँ। तो अन्नमय कोश, फिर जाके मनोमय कोश, देन उस उसके आगे फर्स्ट अन्नमय कोश, उसके आगे प्राणमय कोश, उसके आगे मनोमय कोश, उसके आगे विज्ञानमय कोश, और उसके आगे आनंदमय कोश। सो श्री कृष्ण भगवान के हमको कर्म योग में क्या सिखाया? पहले काम करो। तो our gross body, it is connected with annamaya kosh and pranamaya kosh. We have feel, touch, senses attached to it. Next is thoughts, contemplation. Why me? Why this? Every question arises in Manomaya Kosh. So that is a travel towards the Vijnanamaya Kosh. So then Sri Krishna Bhagavan हमको क्या बोला? Knowledge. Knowledge is more supreme to our questions and thoughts. मनोमय कोश। तो नॉलेज कहाँ आता है? विज्ञानमय कोश में आता है हम लोगों को। मतलब हमको नॉलेज, क्वेश्चंस इसलिए जनरेट होता है कि हम हमारे अंदर नॉलेज को इंड्यूस करें, नॉलेज को सीख करें। तो इसीलिए क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आना गलत नहीं है, क्वेश्चन इज अ ट्रैवल टुवर्ड्स द आंसर्स। तो क्वेश्चंस के बाद आता है आंसर्स, नॉलेज। और नॉलेज के बाद आता है विज्ञानमय कोश, मतलब विजडम, विच इज वे मोर हायर देन द नॉलेज, विजडम। तो विजडम के बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में मतलब, और वहां और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमानंद है। और वही परमानंद हमारे सेल्फ जो आत्मा है, वही आत्मा राम से स्थित है। सो दिस इज द नॉलेज दैट वी हैव गॉट फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। इन दैट when Bhriguvali, in that Bhriguvali, it is well explained about all these koshas. So, in that, Bhrigu Maharshi, once what happens, Bhrigu Maharshi seeks his father, says, "Oh Father Varuna, please tell me what is Parabrahma." Then Varuna instructs him to go and do meditate on your five tattvas. That means go and meditate on Annamaya Kosha. Go and meditate on the food you eat and your five senses. First, understand them. First, acknowledge them, understand them, meditate upon them. Then, Bhrigu Maharshi goes and do meditation on them. Then he sees how uh, we are all connected with the food we intake. He understood that, and how we are all feeling and contemplating this world with our five senses. That Bhrigu Maharshi understood. Then he again goes on and says, "Oh Father, I now understand the food is Parabrahma Tattva that we intake, and the five senses are the inputs for the brain that we have, but these are not permanent. Please tell me what is upon this." Then Varuna says, "Go on meditate on your prana. uh, just understand where the prana is originating with. Understand why we are all having prana." And in that, then again, Bhrigu Maharshi goes on and meditates on prana. Meditates on pranastati. Then he understands each and everything. I mean, living and non-living beings, everyone are connected through prana. It is just the portion of prana that is, as you mix a chemical, if you concentrate well, then the formula is very thick. And if you concentrate a little, then you still have that formula, but the concentration is low. So वैसे ही हमारे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स में प्राणा है। तो प्राणा के स्थिति में हम सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो भृगु महर्षि यहाँ समझते हैं कि प्राणा आ रही है, बॉडी को एंटर करी है और बॉडी से जा रही है।
पहले उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि बॉडी बॉडी फूड से उद्भव करी है, फूड से जीवित करी है, पर बॉडी श्वर है, मतलब इट इज डिटोरेटिंग, मतलब ये परमानेंट नहीं है, बॉडी परमानेंट नहीं है। uh, और next he understands prana. Prana is connected with all the beings on this world, but prana भी शरीर के अंदर आ रही है और शरीर के बाहर जा रही है, मतलब ये भी सच नहीं है, मतलब ये भी पूर्ण स्वरूप का ब्रह्म तत्व नहीं है प्राण भी, बिकॉज इट इज नॉट constant, it is not consistent and it is not everlasting। तो उसके बाद भृगु महर्षि जाता है वह अपने पिताजी के पास, पिताजी वो आप बोलिए कि प्राण भी कांस्टेंट नहीं है, प्राण भी सच नहीं है, उसके उसके आगे क्या है? तो वरुणा बोलता है कि प्राण के आगे मनोमय कोश है, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, देयर इट वर्क्स। गो मेडिटेट ऑन योर माइंड। दैट मीन्स इधर भृगु महर्षि अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे, अपने रीजनिंग माइंड में, रीजनिंग माइंड में कंसंट्रेट कर रहे थे, मतलब कैसे हमारे थॉट्स फ्लो इन फ्लो आउट हो रहे हैं, वो सभी उनको जान रहे, अपने थॉट्स को जान रहे। तो वो व्हेन ही बिकम्स अ थॉटलेस स्टेट एंड अगेन ही गोज टू Varuna and says, oh Father, now that I have known about my thoughts, where it is originating, and I understand that thoughts are also not constant. They are entering and they are leaving. It is like a wave. It is also not permanent. तो मुझे वो भी शाश्वत नहीं है, हमारे थॉट्स भी शाश्वत नहीं है, आप आगे बताओ पिताजी करके। देन वरुणा उनको बोलता है कि गो मेडिटेट ऑन द नॉलेज, मेडिटेट ऑन द जीवा, मेडिटेट ऑन परमात्मा, मेडिटेट ऑन द लाइट। तो इधर भृगु महर्षि अभी नॉलेज सीख के और नॉलेज से कंटेम्पलेशन सीख रहे कि जीवा क्या है, परमात्मा क्या है, भौतिक क्या है, अभौतिक क्या है। he is seeking all the knowledge, he is seeking all the knowledge that is in the world and outer the world। ही इज सीकिंग कि कैसे हम प्राण ली है, कैसे हम इस शरीर को ली है, कैसे हम जीवित कर रहे हैं, कैसे हम इससे मरण पा रहे, मरण के आगे क्या है, ये सारे नॉलेज वो सीख रहे थे। तो वो वेद उपनिषद सार के माध्यम से नॉलेज सीख रहे थे। तो नॉलेज भी सीख के फिर से वरुणा के पास आके बोलते, पिताजी नॉलेज, मैंने नॉलेज अंडरस्टैंड किया है, पर उसके आगे क्या है मुझे कृपया बताइए। तो वरुणा बोलता है नॉलेज के आगे तो आनंद है, तो ब्रह्म है, तो उसके उसके बाद और कुछ नहीं है। तो वो आनंद चेतना में रहकर वो आनंद तुम पालो। मेडिटेट ऑन ब्रह्म तत्व, मेडिटेट ऑन योर आनंदमय कोशा विदाउट एनी कंटेम्पलेशंस, मतलब कोई ये क्या वो क्या ये इंक्वायरी के बिना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि नॉलेज भी के कुछ हद तक सीमित है। तो नॉलेज के परे विजडम है, विजडम के परे पर ब्रह्म तत्व है। तो भृगु महर्षि फाइनली ही मेडिटेट्स ऑन पर ब्रह्म तत्व, ही मेडिटेट्स ऑन इन द स्टेट विद द शीत ऑफ, ऑन द स्टेट ऑफ आनंदमय कोश। तो ऐसे जाता है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद। तो हमारे वेद सार में कितना ज्ञान है, हम उसके वो भगवत गीता में कर्म योग में ये सारे ज्ञान इंड्यूस किया है भगवान, मतलब छोटे छोटे शब्दों में, सिंपल ही वेरी सिंपलीफाइड दैट, he just said that thoughts, okay, go meditate on thoughts and then comes the knowledge and then comes the wisdom and then comes the me। तो भृगु भृगुवली का सार जो है
श्री कृष्ण परब्रह्म ने हम लोगों को इतना सिंप्लीफाई करके दे दिया था। Then we will head on to our today's Bhagavad Gita recital. हम स्टार्ट करें श्लोक 13 से। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यवहारनाम्नामनुसरन् यः प्रयाति त्यज्यान् देहं स याति परमां गतिम्। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि one who departs from the body while remembering me, the Supreme Personality, and chanting the syllable of Om while attain the supreme goal, will attain the supreme goal। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि जब तुम्हारी अंतिम घड़ी आती है तो मुझ में तुम्हारा ध्यान रखे, मुझ पे प्रेम रखे, मुझ पे विलीन होके मेरे साथ रहने की सोच रखे और ओम का जाप करो। ओम से ही तुम उद्भवित हो, ओम से ही ये समस्त सृष्टि जी रही है। ये समस्त सृष्टि का उद्भव ओम से ही हुआ है। तो ओम का स्मरण करके मुझ पे तुम्हारा सारे गुण, मतलब कर्म ज्ञानेंद्रिय, माइंड, मन, चित्त, अहंकार, ये सारे मुझ पे केंद्रित करके ओन एंड यू ओनली एंड ओनली सी मी एट योर very last breath, and your breath will be transferred with will be immersed in me। तो श्री कृष्ण भगवान श्लोक 13 में वो बोल रहे थे हमको। तो वी आर हेडिंग टू श्लोक 14। अनन्या चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तत्सा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि ओ पार्था, फॉर दोज yogis who always think of me with exclusive devotion, I am easily attainable because of their constant absorption in me। तो ये श्री कृष्ण भगवान इधर बोल रहे कि ओ पार्था, जो योगी, जो मेडिटेट करता है मेरे ऊपर, जो कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करते हैं, मतलब निरंतर मेरे ही दर्शन में रहते हैं, उनको मेरा प्राप्ति अति सुलभदायक है। और मैं बहुत ही आसानी से उन सभी लोगों के पास, उन सभी चेतनों के पास मैं रहूंगा। तो करके इधर बोल रहे थे। वी आर मूविंग ऑन टू वर्स 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गतः। तो इसमें श्री कृष्ण महाप्रभु बोल रहे, having attained me, the great souls are no more subject to rebirth in this world, which is transient and full of misery, because they have attained the highest perfection। इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि जैसे जो योगियों के बारे में मैंने बोला, जो योगी नित्य मेरे ऊपर सोच रखते हैं, मेरे ऊपर ध्यान रखते हैं, उन सभी जीवनों का रीबर्थ, बॉर्न एंड रीबॉर्न, ये इस चक्रव्यूह से वो बाहर उभर के आएंगे और सिर्फ मेरे पे लीन होंगे। मतलब साक्षात वो महाअवतार स्वरूप में हम जाके विलीन हो जाएंगे। उसके बाद हमको इस साइकिल ऑफ बर्थ से हमको मुक्ति मिलेगा। मतलब बॉर्न और रिबॉर्न, कर्म और पास्ट कर्म, फ्यूचर कर्म, इन सभी उनसे जुड़ाव चली जाती है हम लोगों को। तो वो बोल रहे श्री कृष्ण परब्रह्म।
So that is the eternal cycle. We have to get out of this cycle of birth and reach the eternal cycle. सो श्री कृष्ण भगवान श्लोक 16 में बोल रहे, आब्रह्म आ आब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुप्येत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, in all the worlds of this material creation, up to the highest abode of Brahma, you will be subjected to rebirth, O Arjuna. But attaining my abode, O son of Kunti, there is no further rebirth. तो ये बोल रहे कि ब्रह्म, you, including Brahma, you all are uh, uh, in a cycle of Janma and Marana. You are in a cycle of this karma. So one who seeks me, will get the cosmic consciousness. पर कॉस्मिक जो कॉस्मिक कॉन्शियस में विलीन होते हैं, उनको जन्म और मरण, इस साइकिल, इस चक्रव्यूह से बाहर जाते हैं। आप ये सोचे, इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, जो ब्रह्मा हमको क्रिएट करे, उस ब्रह्मा को भी इस साइकिल चक्र में जीव मतलब जीव करना है, ट्रैवल करना है। तो हम हमको जो क्रिएट किया है, वो ब्रह्मा, वो खुद भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इधर श्री कृष्ण भगवान हमको ये प्रेरणा दे रहे, ये बोल रहे कि अ, आप इस चक्रव्यूह से बाहर आके एटर्नल कॉन्शियसनेस को सीख करते हैं, वो साइकिल विच इज नॉट इवन एक्सक्लूडिंग द ब्रह्मा। तो हम ये पार कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान साक्षात परब्रह्म हम का उद्धारण करेंगे। ही इज गिविंग दैट प्रॉमिस, but we have to practice, we have to meditate, we have to seek the direct line। कितने बार हमको इनडायरेक्ट लाइन गुजरना, साइकिल में जाके निरंतर चक्कर काटेंगे, हमको चक्कर आ जाएगा। तो उससे आगे जीत है, तो उससे आगे परमात्मा है। तो वी आर हेडिंग ऑन टू वर्स 17। सहस्रयुग सहस्रयुगपर्यन्तम् अह अहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते हुरत्र विदो जनः। तो इधर श्री कृष्ण भगवान नो हमको टाइम लाइन सिखा रहे। 1 day of Brahma, which is called Kalpa, lasts 1,000 cycles of 4 ages, Mahayugas. मतलब 4 महायुगा एक कल्पा बनेगी। And his night is also extended on the same path। मतलब उनका एक दिन चार महायुग, और एक रात्र 4 महायुग, मतलब उनका पूरा एक दिन और रात मिला के 8 महायुग होंगे। The wise who know this understand the reality about day and night। तो हमारा एक एक कलयुग बोलते हैं कि 4,32 years, और द्वापर युग 8,64 years, त्रेता युग मतलब 1,296,000 years, और सत्य युग 1,728,000 years, और महायुग मतलब 4,32,00,000 years। एंड एक कल्पा होता है, उससे भी आप एक और तीन जीरोस जुड़ जाइए उनमें। तो एक कल्प मतलब हम कितने जन्म लेंगे एक कल्प में, और कितने कितने मरण लेंगे एक कल्प में, और कितने से हम लगाव करेंगे, कितनों से हम जुड़ के रहेंगे इस इन कल्पों में। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि सोचो, तुम सोचो, कितने कल्पों के तक तो ये भटकते रहोगे। वो भटकना छोड़ दो, मेरे ऊपर ध्यान रखो, मुझे पालो।
इन सभी से तुम बाहर आ जाओगे। मतलब साइकिल यूं ही 10 सेकेंड्स में गुजरता नहीं है। ये एक साइकिल एक कल्पा है। और ये कल्पा में हम कितने जी रहे, कितने इमोशंस को, कितने थॉट्स को, कितने क्वेश्चंस को, कितने जन्मों को हम जी रहे, ये समझ ले है तो हमारा बुद्धि ना सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही जुड़ जाती है। मतलब, और भगवान मुझे इससे बचा लो करके। तो वी आर मूविंग ऑन टू वर्स 18। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्या हरागमे रात्राज्ञ रात्र रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि एट द एडवेंट ऑफ द ब्रह्मा डे all the beings emanate from the unmanifest source, and at a fall of his night all the aboded beings again emerge into their unmanifest source। तो बोल रहे कि आप एक कल्पा सोच रहे हो, एक कल्पा, ये कल्प अंतिम नहीं है। ऐसे ब्रह्मा कितने साल जीवित रहेंगे, उनका एक दिन और एक रात, कल्पा के बाद, एक एक कल्पा के बाद आप सभी यू विल बी टेकन इन। एंड जहाँ पे तुम खड़ा हो, मतलब जिस पड़ाव में तुम खड़ा हो, मतलब द इन व्हाट प्रोग्रेस यू आर इन सीकिंग द कॉन्शियसनेस, वही उसी पड़ाव से तू फिर से बॉर्न करेगा। मतलब ये कल्पा भी को अच्छा हम समझ लेंगे, और अच्छा एक कल्पा जी लेंगे, मतलब एक कल्पा नहीं है। जितना जितना देर ब्रह्मा जीवित रहेगा उतना कल्प हम मरण करेंगे, हम उतने साइकिल्स में लगातार निरंतर चलते रहेंगे। और जहां तुम कल्पा एंड होगी, वहां तुम कॉन्शियसनेस में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की सीख में कहाँ खड़ा हो, उसी स्टेज से तुम्हारा फिर से जन्म होगा, और उसी स्टेज से तुमको फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा। देन वी आर मूविंग ऑन टू वर्स 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्राज्ञमेव सः पार्थ प्रभवत्या हरागमे। तो इसका अर्थ ये है कि multitudes of beings repeatedly take birth with the advent of Brahma day and reabsorbed on the arrival of cosmic night to manifest again automatically on the advent of the next cosmic day। मतलब ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये सिर्फ मनुष्यों का है क्या? नहीं, ये सभी जो हमको जैसे हमको 14 भुवनास पता है, 14 लोक्स पता है, उन सभी 14 लोक्स में जीव है। और उन्हीं उन सभी लोगों का जीव का यही हाल है जो हमारा हाल है। जो आज जैसे हम कल्प को जी रहे, उनका भी वैसा ही हाल है। ये सारे जीवों को, मतलब आप मनुष्य का अकेले परीक्षा नहीं है। जो जो मल्टीट्यूड्स में, जो सारे ब्रह्मांड में कितने कितने जैसे हमारे अर्थ है, जायज है कि इफ अर्थ इज पॉसिबल देयर आर आउट देयर अदर प्लैनेट्स एंड अदर बीइंग्स लिविंग जस्ट लाइक अस। आप सोचिए कि ब्रह्मांड में कितने सृष्टि है, उन सारे सृष्टियों का एक ही ऑर्डर है। वो ब्रह्म के टाइम पे टाइमलाइन में चलती है। और ये सभी जीव को, जो सृष्टि में ये सभी जीव उद्भव हुए, वो सभी का एक ही मार्ग है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस को सीखना। और उनका कल्प, उनका टाइमलाइन भी जैसे ही चलता रहेगा, उनका उनका भी जन्म जन्म और मरण रहेंगे। और उनका भी जैसे हम हमारी ट्रैवलिंग है, उनका भी ट्रैवलिंग है। तो करके श्री कृष्ण भगवान इधर बोल रहे हैं। सो वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्स फॉर टुडे, वर्स 20। प्रस्त परस्तात्स्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यः सः सर्वेषु भूतेषु नस्तस्य सुना विनश्यति। श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे, transcendental to this manifestation and unmanifestation creation, there is yet another unmanifest eternal dimension that realm does not cease even when all others do. So श्री कृष्ण भगवान बोल रहे ये सृष्टि आ, आ, ये संसार सृष्टि करेगा और विलीन करेगा। जैसे ये सर्किल ब्रह्मा के सर्किल रोटेट कर रही है, आप समझो कि ब्रह्मा के सर्किल के ऊपर एक और सर्किल है जो मेरे स्थान है, विच इज एटर्नल लाइट, विच इज प्योर कॉस्मिक लाइट। इस ब्रह्मा के सृष्टि में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है, पर मेरे सृष्टि में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। मैं निरंतर अचंचल हूँ। मैं आई एम द परमानेंट, आई एम द सुप्रीम सोल। जिस ब्रह्मा के सर्किल में तुम हो, उसमें तुमको लगातार चर करना पड़ेगा, पर मैं स्थिर हूँ, मैं स्थित हूँ, मैं अभौतिक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं निरंतर हूँ, मैं साकार हूँ। तो वो श्री कृष्ण भगवान पर ब्रह्म तत्व को हम परम पर ब्रह्म तत्व को हमको समझा रहे हैं कि जानो परखो ब्रह्म के साइकिल के ऊपर, इट इज नॉट परमानेंट। मतलब जन्म और मरण ये परमानेंट नहीं है, ये रिलेशंस परमानेंट नहीं है। इस चक्र से, इस साइकिल से ऊपर आओ। ऊपर आने के तुम एटर्नल लाइट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में विलीन होगी, और वह प्योर और प्योर चेतना, तुम्हारी चेतना परम चेतना से जुड़ जाएगी। वो परमानेंट है, उसको सीखो करके श्री कृष्ण भगवान हमको वेरी सरल भाव से, सरल शब्द विनियोग करके वेदों का सार हमको पढ़ा रहे। वही हमारी सच है, और वही हमको जानना है। थैंक यू मास्टर्स फॉर joining in the early in the morning, एंड थैंक यू श्री कृष्ण महाप्रभु हमको सार देने के लिए, जीवन का सार देने के लिए, जीवन का मतलब आत्मा का सार देने के लिए। और विल स्टार्ट विथ आवर मेडिटेशन। क्लोज योर eyes, clap your fingers into the fingers, masters. Sit straight, but do not stop your reflexes or do not stress yourself. अपने नासिका पे अपने ध्यान रखना है, जैसे श्री कृष्ण भगवान हमको बोला है, बी विथ योर ब्रेथ मास्टर्स। और अपने हेड, नेक और स्पाइन को एक ही अलाइनमेंट में लीजिए। ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3 we'll start our meditation. एक, दो, तीन। बी विथ योर ब्रेथ मास्टर्स। अपना कंप्लीट सरेंडर में रहना है, स्थिर रहना है। हमारे जो भी थॉट्स है, सोच है, उनको बाहर छोड़ देना है, उन पे जोर या हमारे कंसंट्रेशन नहीं डालने का। गेट योर सेल्फ इन स्टेट ऑफ लव मास्टर्स। आप इस एसेंस को समझो। सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति लेनी है हमको, उनके चेतना से जुड़ना है हमको।
Concentrate on your third eye, masters. Concentrate on your pineal gland. That is a very doorway for our consciousness to travel. I invite all our higher selves, हमारे पूर्ण आत्मा को बुलाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी सहायता करो, मुझे मार्गदर्शन दो और मेरे ऑरा को क्लेंस करो एंड मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करो। हम हमारे चारों तरफ रक्षा कवच बना रहे, हमारे हायर सेल्फ के सहायता से। तो बी इन ग्रैटिट्यूड विथ योर हायर सेल्फ। We are creating a protective shield in our aura. We call upon our higher self and we call upon all the eternal masters और राधे रानी का प्रिय श्री कृष्ण भगवान को बुलाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को बुलाएंगे, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को बुलाएंगे, महाअवतार बाबा जी को बुलाएंगे, लाहरी महाशय को बुलाएंगे और सप्तर्षि मंडल का चेतना को हम आज बुलाएंगे। सारे एटर्नल मास्टर्स को, योगानंद को, युक्तेश्वर गिरी महाराज को, जो भी इस धरती पे हमारे एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी असेंडेड मास्टर्स को हम बुलाएंगे। मास्टर माइत्रेय, मास्टर मौर्य, सभी एक एक नाम लेके सभी उनको बुलाएंगे, क्योंकि हमको जरूरत है उनकी सहायता के लिए। In our higher self protection, with our master's consciousness, we are now aligning and adjusting ourselves to the universal consciousness. आप सिर्फ और सिर्फ सच पे ध्यान दीजिए। जो सच इस भूमि पर है, इस सृष्टि में है, वो भी अशाश्वत है। जो पूर्ण स्वच्छ है, पूर्ण स्वरूप है, वो निरंतर है। वो जो स्थिर चेतना है, उस पर ब्रह्म तत्व पे हम कंसंट्रेट करेंगे आज। हमारे मास्टर्स हमारे अलाइनमेंट देख रहे। We are traveling towards the supreme consciousness. Be alert मास्टर्स, सोने का नहीं है, आप जागृत अवस्था पे रहिए। It is your consciousness right now talking to you. Pay attention towards it. Do not ignore any questions. If you have any questions, put forth it to be addressed by the masters and the supreme consciousness. पर जोर नहीं देने का अपने क्वेश्चंस को। आप अपने क्वेश्चंस को पुट फोर्थ कीजिए और भूल जाइए, और आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर और जरूर मिल जाएगी।
Concentrate on your inner alignment, masters. अपने आत्मा पे, अपने चेतना पे, अपने बुद्धि पे, अपने अहंकार पे ध्यान दीजिए, मास्टर्स. Masters are working towards creating our inner alignment, regenerating our inner journey. जो हम भूल गए, हम बाहर की दुनिया को निरंतर देख रहे, बाहर की दुनिया को परख रहे, बाहर की दुनिया के बारे में ही सोच रहे. We have forgot our inner alignment, masters. हम अपनी चेतना को अंतर इनर जर्नी करेंगे अपने चेतना के साथ. We dwell in the light of eternal bliss. May the peace in all of us tranquil, endlessly. जागृत अवस्था पे रहिए, मास्टर्स. अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, श्वास पे केंद्रित कीजिए. मास्टर्स आर हीलिंग अस. जहाँ भी हमको हीलिंग चाहिए, वो मास्टर्स अपने काम कर रहे हैं. तो allow them for doing it. Do not restrict yourself. If so any sensations in your body, let them flow. फ्रीडम दीजिए अपने आप को, स्वेच्छा दीजिए अपने आप को. अपने जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, उससे अपने आप को फ्रीडम दीजिए. जो भी आप संकोच कैरी कर रहे हैं अपने साथ, उसको लेट डाउन कीजिए. लेट देम गो. अपना फ्री फ्लो देखिए, मास्टर्स. अपना फ्रीडम देखिए. आज हम अपने सोच को फ्रीडम दे रहे हैं. अपने सोच में छपा हुआ रिस्ट्रिक्शंस को फ्रीडम दे रहे. अपने चेतना को फ्रीडम दे रहे. Which is the timeless and which is the boundless, which is the eternal. That cosmic light is what I am seeking for. संकल्प लीजिए, मास्टर्स. जो निरंतर है, जो साकार है, जो परब्रह्म तत्व है, मैं उनके ही शरण ले रहा हूँ या ले रही हूँ. और कुछ भी नहीं ध्यान में रखते हुए अपना सोच, मन, चित्त, अहंकार पूर्ण चेतना से, परब्रह्म से जोड़ लीजिए, मास्टर. Do not think it is not possible. Do not think it is hard. It is very easy when you allow yourself. So you allow yourself and the rest will be taken care of. It is the promise that is given by Sri Krishna Parabrahma.
आप अपने आप को तैयार रखिए और बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर। हम आज सूर्य मंडल के मित्रों से मिल रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं अपने कॉन्शियस से। उनसे हम ज्ञान सीख रहे हैं, क्योंकि दे आर द सुप्रीम बीइंग्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो अपने अपने सूर्य मंडल के मित्र को आवाहन कीजिए और उनसे भेंट कीजिए। यू कैन डू इट मास्टर्स। ये इल्यूजन नहीं है, ये सच है। मास्टर्स आर अलाउिंग अस टू ट्रैवल inwards and reaching our sun। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या वरीज है या जो कुछ भी हो, आपका पेन सफरिंग जो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता मास्टर्स। Put forth yourself towards them and seek their guidance. They are here to help us. Travel towards the eternal light। हम सूर्य मंडल से गुजरते हुए अपने चेतना से, अपनी आत्मा से ट्रैवल कर रहे towards the eternal consciousness। We are traveling towards the n number of galaxies। आप जितने दूर सोचोगे उतना ही मुश्किल होगा मास्टर्स। आप ये सोचिए कि I can travel it and it is just an inch above me। और उस अनुभूति से आप कॉस्मिक लाइट को प्राप्ति कर सकते हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को प्राप्ति कर सकते हो। Think that it is within me and it is just right in a touch of my finger। आपको दूरी नहीं नापने का मास्टर्स। सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे सूर्य मंडल के मित्र अपने अपने रोशनी से हमको जागृत कर रहे। सो बी रेडी टू रिसीव दैट एनर्जी। आप तैयार रहिए कि वो रोशनी को आप एक्सेप्ट कीजिए। अलाउ योरसेल्फ in taking that roshni, taking that energy। It is well needed for us, it is gifted for our। वो रोशनी हमको इसीलिए दे रहे जा रहे कि हमारी प्रयत्न, हमारी कोशिश वो देख रहे हैं। एंड दे आर ऑफरिंग द हेल्पिंग हैंड। कितना भाग्यवान है हम कि समस्त सृष्टि में हमको सहाकार देने वाले और भी है। एंड वी आर रिसीविंग द हेल्प। और वो हमको
अपनी संतान की तरह देख रहे हैं। जैसे हम हमारे बच्चों को देखते प्रेम करते हैं और उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे हमारे सूर्यमंडल के मित्र हमारे उन्नति चाह रहे हैं। So be in the state masters। आज हमारी सोलर प्लेक्स ओपन होगी। अब जितना अलाउ करेंगे उतना ओपन होगी। तो be in a full freedom without no questions or doubts whatsoever। Allow yourself and don't worry, you have a protection of all the eternal masters and your higher self is guiding and guarding you, protecting you. So just freely allow it. They are working on us. Suryoshmi। आप उनके आकर और देखने की इच्छा नहीं रखने का मास्टर्स। आप उनसे कॉस्मिक लाइट से जुड़े हो और वो आपको लाइट की तरह ही दिखेंगे। To seek that light that is showing us a path and a guidance to travel in our inner consciousness. Some of you might see few lights, few colors, or some of you might even see what's happening in the sun, वो उज्जवल को प्रज्वल को और सूर्य की रोशनी को आप एक्सपीरियंस करोगे मास्टर्स। और उस प्रकाश को आप कंप्लीटली इनटेक करना, ये नहीं सोचने का कि ये वो बड़ी तीव्र है, नहीं। It is traveling in the form of light and energy towards you, so you will be able to intake everything that is given to you, and it is abundant energy that is traveling towards you। So I request all the masters, अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, जागृत रहिए और हेल्प जो हमको मिल रही है वो पाइए। You want to take a help of your deep inhalations, आप ले सकते हो। अपनी पूर्ण चेतना की डाउनलोड हो रही है अभी। Masters, if you are feeling any pain, or if you are feeling any unnecessary thought or blockage, seek help right now. You are getting the help and you can clear that blockage right now, at this very moment, at this instant। आप सूर्य मंडल के मित्रों के साथ बैठ कीजिए और बोलिए,
जहां पर भी आपको ब्लॉकेज लग रही है, लग रहा है, जहां पर भी आपको पेन लग रहा है, इधर इट इज इमोशनल, फिजिकल, वर्चुअल और योर सेंसेस, फर्क नहीं पड़ता मास्टर्स, दे आर नॉट जजिंग यू। आप हेल्प सीख करो, इट्स द राइट मोमेंट मास्टर्स, and they will accept your invitation, and healing will progress from now on to next 7 days. That is what masters are saying. Or masters are saying, instructing us to drink as much as water in this healing process as you can. आप वो ध्यान रखते हुए अपनी चेतना को फिर से इस भूमिका पे लाइए. Feel your senses of your body, masters, and address your friends, and address आपके सूर्य मंडल के मित्रों को एड्रेस कीजिए कि धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपके अवेयरनेस को हमको, आपके प्रेजेंस की हमको अवेयरनेस देने के लिए, और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे वेट करने के लिए, और धन्यवाद आपकी दोस्ती के लिए, और धन्यवाद आपके हीलिंग के लिए. They are saying we are right here whenever you want. We are here for you, dear. Thank you all the enlightened aligned masters, eternal masters, जो आज ये संभव किया, इस प्रक्रिया, इस कनेक्शन को संभव करने वाला और कोई नहीं है, महातर बाबा जी है, और सारे गैलेक्सी के मंडल मित्र को एकजुट होने की इंस्ट्रक्शन दी गई है आज. हम अकेले नहीं हैं मास्टर्स. We are aligned, we are in connection with all our friends from many lifetimes, from many multitudes, from many galaxies. Even we have friends in our star galaxies. This is what the information that masters are giving us. आप अकेले नहीं हो, हमारी चेतना जुड़ी हुई है. आप कोशिश करो, हम सहायता करेंगे, और कोशिश के बिना कुछ भी अधूरी है. कोशिश के बिना ज्ञान भी अधूरी है. कोशिश के बिना प्रेम भी अधूरी है. आप कोशिश करो, हम सहायता करेंगे. धन्यवाद. I now bow and pay my respect and gratitude towards the universal consciousness and all disconnected beings and the supreme masters of this plane and the cosmic plane. May the Sri Krishna Parabrahma reside in all of our hearts, and may that eternal love blossom in all our hearts. धन्यवाद. धन्यवाद महाप्रभु. धन्यवाद श्री कृष्ण महाप्रभु. धन्यवाद चैतन्य महाप्रभु. And do not forget, masters, your doubts are now cleared, and you can address this world with complete confidence. आपको कुछ भी आता हो, आपको कुछ भी ज्ञान हो, वो बांटने की समय है अभी मास्टर्स. So spread out the light of knowledge towards your loved ones, towards your connected beings, and in this world. And with that light, we come back to our consciousness,
On a count of one, two, and three, ground yourself, masters. You are in a higher altitude. Ground yourself. टू, और भी नीचे आइए, आप धरती को टच कीजिए। 3, आप ग्राउंडेड हो। Gently open your eyes with a reflection of thankful heart for your body, mind, and soul, for your thoughts to allowing it to happen, for a supreme consciousness to dwell in you. Gently rub your palms and see through your palms, masters. 1, 2, and 3. धन्यवाद. Gently open your eyes. I know it's a bit difficult, but open your eyes slowly and slowly, gradually. Open your eyes. Open your eyes, masters. And I thank each one of you for joining us and making it possible, making the travel possible. Even I am amazed of these instructions that I have got today with my masters, with our masters. And I thank each one of our higher selves and the eternal masters connected with our aura. Thank you. धन्यवाद. डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी सुजाना जी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया। और मेरे साथ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आज मेरी बॉडी पार्ट नम पड़ रहे थे, स्पेशली मेरी राइट लेग ना। मुझे बैठने में बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, और अब मुझे लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं आराम से क्यों नहीं बैठ रही हूँ, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पर जब आपने मेडिटेशन गाइड करने लग पड़े, तो वो सोलर प्लेक्स चक्र में मुझे पहले ही दिख गया था। और वो मैं बहुत ज्यादा वो हीट जा रही थी बॉडी में ना, बैलेंस कर रही थी एनर्जीज को। तो थैंक यू उसके लिए भी। और आज की लेसन में ही कितना बड़ा लेसन है। पहले तो देखो 13 चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया, 13 हमारे में कहते हैं कि हम जो भी काम करना है ना, तो ईश्वर को कहो कि तेरा भी आपका कर रहे हैं हम लोग, हमारा मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपका है। क्योंकि वो सरेंडरेंस होती है। और सरेंडर कितना अच्छे भाव से बताया, कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि क्वेश्चन करो, पर क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग करना है ये भी तो दिमाग में रखो ना। आप बोल एक चीज आपने कभी कुक की नहीं है, रेसिपी पे रेसिपी मांगी जा रहे हो, इसको कैसे करना है वैसे नहीं करना। आप कुक करोगे, आपको आपको एक्सपीरियंस होएगा तभी आप उसको वैसे अपनी लाइफ के बीच में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, हम एक तो क्वेश्चन होता है जिज्ञासा वाले, एक क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। बिन मतलब वो पता लगता है कि आपका थॉट पैटर्न कैसा है, आप फालतू की चीजों में कितना ध्यान देते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में कितने हो। जैसे अब कितने कितने हमारे अलग अलग वो बताए गए हैं, कि अवेयरनेस के कितनी डिफरेंट टाइप की होती है, बॉडी के टाइप लेवल की होती है, हमारे सोल लेवल की होती है। बट मैं कौन से लेवल लेवल पर हूँ। आप शून्य में जाएंगे तभी शून्य होंगे, अदरवाइज आप शून्य को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कितना अद्भुत है। और श्री कृष्ण ने जैसे कहा कि जब आप तत्व को कैसे जानोगे, आप श्री कृष्ण को कैसे जानोगे, आपने अपने आप को ही नहीं जाना। मुझे सबके बारे में खबर होती है, कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता होता है ना। हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है। और हम लोगों को लगता है कि ये तो नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। नहीं, हाँ, कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्क करो। जो भी कोई चीज है ना, कहीं पे भी है, आपको लगता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। और श्री कृष्ण
जब आप बोल रहे थे तो वो मुझे ऐसे ही खड़े हुए दिख रहे हैं और हंस रहे हैं, लीला करते हुए। और इतनी एनर्जीज थी, मतलब मैंने बहुत हायर बीइंग्स देखे, एंसेस्टर्स देखे, और सब बहुत ज्यादा खुश थे। कल रात को भी मेरे साथ ऐसे हुआ, क्योंकि अभी मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन में जा रहा है। तो मैं मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम ये बताओ, है ना। और मैं अपने मन में बोल रही हूँ, ये मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं मोनिका हूँ। और अभी आप जब बोल रहे थे ना, तो मेरे एकदम माइंड में क्लिक किया, और ये मुझे सुबह 1:30-2 बजे के करीब ऐसे ये थॉट्स आ रही थी मुझे, बहुत डीप सी आ रही थी। और मैं कह रही थी कि ये मैं क्या क्वेश्चन आस्क आस्क कर रही हूँ। और फिर जब हम लोग गहरी मेडिटेशन में गए हैं, तो इतनी डीप इंटेंस मेडिटेशन थी। मेरा राइट साइड की पूरी जो बॉडी थी, वो हम कहते हैं ना शिव शक्ति का जैसे होता है ना, तो मेरी जो राइट साइड की पूरी इंटायर बॉडी थी, नीचे हाथ से लेके पैरों तक, वो नमनेस में जा रही थी। वो बार बार मतलब काफी चीजें क्लींस हो रही थी। और बहुत बहुत थैंक यू, उसके लिए ग्रेटिट्यूड है ईश्वर का भी और आपका भी, कि आप ये टाइम निकालते हो। और भगवत गीता से बड़ी ज्ञान की गंगा कोई और है नहीं है। और श्री कृष्ण भगवान जितने प्यार से समझाते हैं, मतलब आज के क्या, उनके हर एक वचन में बहुत सारी चीजें डीप हैं, अगर हम लोग उसको वैसे लें कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों में ना जाएं। और जो आपने काल के बारे में बोला कि कैसे काल करता है, और बार बार वो ईश्वर बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि कर्म कांडों से तुम लोग ही जाते हो, हम भी जाते हैं। ब्रह्मा जी तक नहीं बचते हैं, जो क्रिएटर है वो खुद करके दिखा रहा है हमको। फिर भी हमारी वो बुद्धि हो जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हम एक्सेप्टेंस में नहीं है। हम एक्सेप्टेंस में नहीं है। अगर मैं एक्सेप्टेंस में हूँ तो हो गया ना, हो गया, तो इसको अब हम रिवर्स नहीं कर सकते। बट हम ये कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज मैं फ्यूचर में ना करूं। मैं अपने आप को इतना ही करूं कि वो फ्यूचर में वो चीजें मेरे साथ दोबारा ना हो, और मेरा जो माइंड है वो ईश्वर से ज्यादा कनेक्ट हो, ईश्वर तत्व के साथ में ज्यादा कनेक्ट हो। इस चीज से ना, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ में ना कनेक्ट हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो नहीं तो फिर हम लोग उसी चीज में रह जाएंगे, और हम कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अटैचमेंट के साथ में डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। कि चीजें करो जैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी हर एक जो भी उनके थे, रिश्ते थे, उन्होंने बड़ी सहजता से निभाए। और उनसे बड़ी तो डिटैचमेंट किसी की थी ही नहीं, पैदा होते ही जिसको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। इट्स अ बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट लेसन। ठीक है, हम लोगों को कोई कहे कि हमारे लिए वो इजी नहीं है, तो अगर हम सोचें कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये मेरे साथ क्यों होता है, तो भगवत गीता में कितनी कितनी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बताते हैं। फिर उनके फादर जो हैं, उनको कैसे वो मतलब बारिश हो रही है, वो उस अवस्था में भी उनको वहां पे लेके जाते हैं। फिर उनका बचपन कहाँ बीतता है, बचपन बीतने के बाद में कैसे कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कितने स्ट्रगल्स आते हैं, भगवान को कितने चैलेंजेस मिले। कि जब वो मुझे भूल गया, 16,000 थी लड़कियां जिनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण को कहा कि आपने हमें बचाया, हम आपको पति के रूप में लेंगे। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरफ से सोचो, हम इतने रियलिस्टिक, इतने मीन हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोचेंगे, हम कहेंगे फॉरगेट अबाउट अदर पीपल, है ना। बट भगवान दिखा रहा है, जितना तुम दूसरों के लिए करोगे ना, तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड है इन सब चीजों के लिए, अवेयरनेस के लिए। और साथ के साथ में पता लगता है हम कहाँ खड़े हैं भक्ति में। तो थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। आपने म्यूट किया हुआ अपने आप को। Thank you, Monica ji. Thank you, Masters, for joining today. And if you have any questions, please put forth, or if you have any views, put forth. Your inputs are well welcomed and valuable for us. यस। आत्मवंदन सुजन, आत्मवंदन मोनिका जी। Atman, Atman या Ashish ji. सो मच फॉर दिस मेडिटेशन। बार बार मैं ट्रांस में जा रहा था, फिर मेडिटेशन में आ रहा था, मालूम नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज सो।
लेकिन बहुत अच्छा मेडिटेशन था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी से कि पूछना था कि कल रात को आपने बोला ना आपके घर पे आग लगी थी, फिर भी आपने कल का मेडिटेशन कराया। एवरीथिंग इज नाउ सॉर्टेड के मतलब फिर भी आपने कल कराया? शॉर्ट तो नहीं हुआ एकदम से, तो नहीं होगा, बट हम सेफ हैं। मैं और मेरे बच्चे सेफ हैं। नुकसान हुआ भी है, बट अब जो हो गया तो हो गया ना। तो अब ठीक है, हो गया मालिक की मर्जी से, उसकी रजा में हुआ। शायद पता नहीं क्या चीज होएगी, इतने में निकल गई। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव यही सोचती हूँ। और मैं कहती हूँ कि इन सब चीजों से लेसन ये लेना चाहिए, अटैच्ड हूँ, वो चीज है, वो चीज होनी है तो चलो हो गई है, अब उसको मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं करती। दूसरा ये है कि रूटीन के साथ में चलो, ठीक है ना। क्योंकि हम ईश्वर के काम करेंगे, वो ईश्वर अपना जाने, वो लिखा होगा मेरे उसमें कि मेरे को कोई लेसन होगा। क्योंकि मैं तो सोई हुई थी, मुझे नहीं पता जब ये इंसिडेंस हुआ, मेरा बेटा जाग रहा था बड़ा वाला, उसको पता है सारी चीजें। तो मुझे तो उसने उसी टाइम उठाया, तो मैं तो हम इंडियन है, पानी की बाल्टियां भर भर के आग बुझा दी, बाहर निकल गई। और बच्चे पहले भाग गए थे बाहर, क्योंकि वो डर गए थे कि अरे आग लगी कैसे होगा। बट थैंक गॉड सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं हुआ। सेफ है हम लोग। चीजें होंगी, अब उसको टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं होएगा कुछ भी। Yes, ma'am। बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप एवरीथिंग इज मतलब कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल तो है कम से कम। ठीक है मैम। कल का भी ध्यान बहुत अब अच्छा वो, रहा कल रात। जी 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 जी, थैंक यू। अब जो हो गया सो हो गया ना, अब उसको एक्सेप्ट कर दो। पता है कि हम लोग बार बार बहाना बनाते रहते नहीं होता, टाइम नहीं मिलता है ऐसा। तो मेरे मन में भी आ रहा था हम लोग कैसे टाइम निकालेंगे, 21 डेज मुझे और भी मेडिटेशन करने हैं, भगवत गीता पे करना है। तो आपने जब वो अपना एग्जाम्पल दिया तो फिर हम बोलते कि वो तो हमारा तो बहाना, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वो 21 डे का भी मुझे करना है एक्चुअली। जो ना, मुझे भी वही जो बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सेकंड, उससे हमें जाना है, अभी कॉलेज लेवल जाना है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पहुंचना है। ठीक है, आप जैसे लोगों का मतलब साथ रहेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग इजीली वहां पे पहुंच जाएंगे। इसलिए सुजाना जी आपका, मोनिका जी आपका भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत। हम साथ साथ चलेंगे। एक दूसरे के हाथ मैम, पकड़ के। 7 डेज हमको क्या करना चाहिए? एक तो पानी पीने का, और कुछ फॉलो करना है हमें? आपने जो मैं बोला वो ना कि मेडिटेशन में वही इंस्ट्रक्शन मिला कि बहुत ज्यादा पानी पियो, कि हीलिंग विल बी प्रोग्रेस्ड इन 7 days। सो पता नहीं वो इंस्ट्रक्शन क्यों मिला, पर मिला तो बोल दिया। वो ओके। इंस्ट्रक्शन इसलिए मिला है, अभी जो एनर्जीज है ना, तो जो ये अग्रेशन में भी ले जाएगी, ग्राउंडिंग के लिए हमको पानी के साथ कनेक्ट करना है, हमको मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट करना है। जब आप बोल रहे थे ना कि धरती को टच करो, तब मेरे को यही गाइडेंस आ रही थी कि अभी क्योंकि आग जलने की काफी जगह हम लोग ये सुन रहे हैं, इंसिडेंट सुन रहे हैं ना। तो मुझे उस टाइम यही मैसेज आ रहा था कि अभी इस टाइम ग्राउंडिंग की जरूरत है, और वाटर एलिमेंट के साथ में कनेक्ट करो बैलेंस करने के लिए। तो मुझे तो ये मैसेज मिला। तो वही हम सबके लिए भी होगा कि ग्राउंडिंग की वजह से वाटर के लिए बोला उन्होंने। थैंक अब यू। मैं गया था मेडिक्लेम का क्लेम सबमिट करने के लिए, वो भी बोल रहे हैं कि आजकल तो इतने क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ना, ऐसे इंसिडेंट्स काफी हो रहे हैं। वो बोल रहा था वो खुद थक गया है क्लेम कर करके सबका क्लेम वगैरह। तो ये साल थोड़ा सा, ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। तो वो 9 देखो ना, इस साल में ही महायुद्ध हुआ ना, ये महाभारत इसी काल में हुई ना, इसी टाइम में हुआ ना। तो फिर उस टाइम की एनर्जी क्या थी, मार धाड़ की वाली थी। ठीक है, नुकसान हो रहा था, इधर उधर से लोग मर रहे थे। और वैसे भी अभी मदर अर्थ बैलेंस कर रही हैं अपने आप को। तो काफी सारी चीजें ऐसी होंगी। बट हमको डरना नहीं है। ये अगस्त के 28 तारीख तक है मेरे ख्याल से, 28 अगस्त तक है। ऐसा नक्षत्र है। तो इस ओके, हम लोग मेडिटेटर्स हैं, हम ध्यान में जाएंगे। हम वाटर एलिमेंट और आप ऊपर कर देंगे ताकि सभी की सेफ्टी हो, पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। राजेश जी। Thank you, Ganeshi, message. Thank you for your message. Thank you all the masters and gratitude कोटि कोटि प्रणाम। Thank you for your message. हम कल फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद for joining the session. हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। थैंक यू।